Recording the session also. Sir, I started the record. Okay, you have started. Okay. Okay, I'm sharing my screen first. Is it visible? Simranjeet Kaur. Simranjeet? Simranjeet Kaur, is my screen visible? First unmute yourself and then check your mic, Simranjeet. The .NET Framework compilation process. So that is done in two parts. So first phase is done by language specific compiler, and this language specific compiler convert your source code into intermediate language. And the second phase is done by just-in-time compilation. Right? Simranjeet, am I audible? Simranjeet? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, लास्ट में हमने ये किया था ना कंपाइलेशन प्रोसेस. Yes, sir. So this MSIL may contain either a EXE or DLL. Okay, right now how to create EXE or DLL. Right? So for this you have to open Visual Studio. Then open any program. Suppose I want to print something, right? How will I print something on the console? Simranjeet, how to print something in the console? So it is printed by console.writeLine, right? Console.writeLine. If you want to print something, then give a message. Hello, runners. And if you press Ctrl plus F5, it will generate the output. Hello, runners. Now your program contains this main method, right? So if your program contains main method, so exe will generate, right? This console.line is for pausing the output, right? So how to generate the exe file? For generating the exe file, you have to right click on the project, right, and build the project. Right? Build. Right? So it is showing that build 1 succeeded, 0 failed, means your program is successfully compiled and built, and it will generate that exe file, right?
So see the output. This exe file is generated, intro to C#.exe, right? So this MSIL is either exe or DLL, right? exe क्यों बनी है? exe क्यों बनी है आपकी सिमरनजीत? मेरी आवाज आ रही है सिमरनजीत? ओके, exe इसलिए बनी है बिकॉज वी हैव अ मेन मेथड इन आवर प्रोग्राम, ठीक है? अगर ये आपके प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं होता देन इट विल जनरेट DLL फाइल। अभी आपकी क्या बनी हुई है? अभी आपकी exe बनी है बिकॉज वी हैव मेन मेथड इन योर प्रोग्राम। और ये exe कहाँ पर होती है? इफ़ यू राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड गो टू ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर and go to bin and debug, right? This is the exe, right? Intro to C#.exe. You can run by Control plus F5। यहाँ पर भी आउटपुट आएगा आपका, ठीक है, हेलो लर्नर्स, और आपका आउटपुट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, इफ़ यू डायरेक्टली रन दिस exe फाइल, ठीक है, हेलो लर्नर्स। तो इसका पाथ आपका ये है, सी यूजर्स, ठीक है, बिन डिबग, बिन एंड डिबग के अंदर आपको क्या मिलेगा? दैट exe फाइल, राइट? ठीक है, क्लियर है सिमरन जी? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। आपकी MSIL में क्या बनता है? व्हाट डज योर MSIL कंटेन? इसके अंदर क्या होता है? सर EXL फाइल, EXS फाइल, exe एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, exe इज एग्जीक्यूटेबल, और एंड DLL फाइल दैट इज डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। Part 10. ठीक है, assemblies, namespaces and class libraries, ठीक है। So assembly, it is a deployment and configuration unit in .NET, ठीक है, file extension with .exe, ठीक है, .exe and .dll are known as assembly, ठीक है। तो यही दो फाइल आपकी कहाँ बनती है? यही दो फाइल आपकी MSIL में जनरेट होती है, ठीक है। इफ यू सी दैट स्लाइड, ठीक है, exe is executables और DLL is dynamic link library. Assembly also includes metadata, means information of your source file and dependencies of particular exe और DLL, means आपकी exe और DLL कहाँ से बनी है उसकी information भी बताता है assembly, ठीक है। तो assembly में क्या क्या चीज़ें होती हैं? What does assembly contain? सिमरन जी, assembly में क्या क्या चीज़ें होती हैं? असेंबली में आपकी आइदर इट कैन बी exe और DLL, ठीक है, exe और DLL, ठीक है। असेंबली कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्राइवेट असेंबली एंड शेयर्ड असेंबली, ठीक है। प्राइवेट असेंबली क्या होती है? प्राइवेट असेंबली इज यूज्ड फॉर स्मॉल एप्लीकेशन, राइट, एंड शेयर्ड असेंबली इज यूज्ड फॉर the assembly which is sharing in different application, that is called a shared assembly, ठीक है। अब आपने असेंबली तो बना दी, अब उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है उसको देखने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, ILDASM, ठीक है, एंड ILASM, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ILDASM एंड ILASM, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? ILDASM is intermediate language disassembler, ठीक है, बिकॉज आपका जो MSIL है, MSIL का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू डिसअसेंबल दिस इंटरमीडिएट लैंग्वेज देन इट इज़ कॉल्ड ILDASM, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ ILDASM.exe
टू लुक इनटू द असेंबली मैनिफेस्ट या इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, मैनिफेस्ट में क्या होता है, मैनिफेस्ट कंटेन्स द मेटा डेटा अबाउट योर असेंबली। ठीक है, असेंबली के अंदर क्या होती है, या तो मैनिफेस्ट होता है या इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। ठीक है, असेंबली कैन बी आइदर EXE और DLL। ठीक है, अगर आपने देखना है EXE के अंदर क्या चीज़ें हैं, देन यू हैव टू यूज़ ILDASM.exe। ठीक है, इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चलाने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो का कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ विजुअल स्टूडियो। कैसे जाएंगे हम, देखते हैं। यू टू गो टू विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये फोल्डर मिला आपको, देन ओपन दिस फोल्डर, गो टू दिस डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट फॉर विजुअल स्टूडियो 2019, राइट क्लिक ऑन दिस कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, गो टू मोर। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, so it will open this command prompt, right? This will open a command prompt, and in this command prompt first we have to use this path, copy this path। जहाँ पर आपका क्या है, EXE है। आपने इसके अंदर देखना ना, इसके अंदर क्या है, EXE के अंदर आपने इस EXE फाइल की क्या देखनी है, मैनिफेस्ट देखना है। ठीक है, कि इस EXE के अंदर क्या क्या कंटेंट है। ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि एग्जीक्यूटेबल है, इसमें आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, सो मैं दोबारा से कर रहा हूँ, यू हैव टू ओपन विजुअल स्टूडियो 2019, go to developer command prompt, right click, more, and run as administrator. Yes. It's taking some time, just wait। ठीक है, ये आ गया आपका सी। देखो यहाँ पर पाथ क्या आ रहा है, सी विंडोज सिस्टम 32। ठीक है, अगर ये पाथ आया तो आपकी सब चीज़ ठीक है। सो आपने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ILDASM.exe कमांड का यूज़ करना है। दैट इज़ ILDASM.exe एंड पेस्ट दैट पाथ। ठीक है, ये पाथ कौन सा है आपका, आपको समझ में आ रहा है सिमरनजीत? यस सर। ठीक है, ये पाथ कौन सा है आपका, ये पाथ है आपका जहाँ पर आपकी EXE है। ठीक है, तो उस पाथ को आप कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी दिस पाथ एंड पेस्ट दिस पाथ। यहाँ पर पेस्ट करिए हमने, इसके बाद हम EXE का नाम लिखेंगे, जो आपकी EXE यहाँ पर है। EXE का नाम क्या है आपका, intro to C#.exe। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट हियर। If you press enter, it will show you a window, right? अभी विंडो में क्या है, विंडो में असेंबली के बारे में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये आपका असेंबली का नेम है। ठीक है, ये इसका वर्जन है। ठीक है, 1.0.0.0। अगर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, इसके अंदर एक क्लास है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसके अंदर एक स्टैटिक मेन मेथड है। ठीक है, जो आपने सोर्स कोड में लिखा है। अगर आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये बता रहा है आपने क्या इसमें प्रिंट कराया, हेलो लर्नर्स, दैट इज़ विद LDSTR। LDSTR इज़ लोड स्ट्रिंग। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें कॉल हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका मेन मेथड बंद हो रहा है, यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट है, सब चीज़ दिखाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ डन बाय ILDASM। ठीक है, अब बताओ क्या होता है ILDASM, सिमरन जी बताओ ILDASM, व्हाट इज ILDASM? इट इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज डिसअसेंबलर। डिसअसेंबलर हाँ, मीन्स आपको अगर कोई आपकी EXE बनी है या DLL बनी है, उसको डिसअसेंबल करना है, उसके अंदर क्या कंटेंट है वो देखना है, देन यू हैव टू यूज दिस कमांड। ठीक है, ILDASM.exe, और उस कंप्लीट पाथ में जाओगे आप, कहाँ पर आपकी EXE है। ये कैसे मिलेगा पाथ आपको, जब आप प्रोग्राम, हाँ बताओ।
सर कॉपी पेस्ट मतलब पहले कॉपी करना है वहां जाके, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट करना है, हाँ देन विथ एक्सेल हाँ फाइल वो हाँ पेस्ट करके exe फाइल आपको यहाँ से मिलेगी। आप यहाँ सॉल्यूशन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसमें, ठीक है, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, बिन के अंदर, डिबग के अंदर, ठीक है, ये मिली आपको exe फाइल, यही तो है आपकी exe फाइल। हाँ और ये जी पूरा कंप्लीट पाथ है आपका, ठीक है, सी यूजर्स आदि सोर्स रेपोज इंट्रो टू सी शार्प बिन डिबग तक का यही पाथ हमने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, ठीक है, सी यूजर्स, उसके बाद हमने लिख दिया इंट्रो टू सी शार्प डॉट exe, ठीक है, इसको चलाया तो हमें क्या मिला, हमें ये फाइल मिली थी, ठीक है। ये फाइल में क्या दिखा रखा है कि हमारे पास एक क्लास है, एक मेन मेथड है, इसमें हमने हेलो लर्नर्स लिखा हुआ है, ठीक है, स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखो एस लिखा हुआ आ रहा है, येलो रंग से आ रहा है, पिंक के ऊपर यस एस, दैट इज स्टैटिक। यस सी टी आर इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आपका बाद में आएगा क्या होता है, ठीक है, ये असेंबली का नाम है और ये इसका वर्जन है, ठीक है। अगर आपको इस असेंबली की टेक्स्ट फाइल बनानी है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, so we can also use that tool to export manifest and IL to a text file, ठीक है। अगर आपको इस असेंबली की क्या बनानी है, टेक्स्ट फाइल, तब क्या करोगे आप, you go to that window, go to file and click on dump, ठीक है, dump and okay, ठीक है, so it will generate a IL फाइल। IL फाइल क्या होगी अब आपकी, what is IL फाइल, IL का मतलब क्या हुआ, IL मीन्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, IL मीन्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इंटरमीडिएट लैंग्वेज। सपोज हम इसको सेव करना चाहते हैं, हमने इसका नाम दे दिया सैम्पल, ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा सी ड्राइव में, ठीक है, सेव, इसको आप क्लोज कर लो, ठीक है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, आप सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव एंड दिस इज सैम्पल डॉट आई एल, यही फाइल तो आपने सेव करी थी, ठीक है। अगर आप इससे देखना चाहते हो सैम्पल डॉट आई एल, तो यू हैव टू ओपन नोट पैड, ठीक है, और इस फाइल को ड्रैग कर लो नोट पैड में, ठीक है, नोट पैड में आपको अभी फाइल के पूरे कंटेंट दिख जाएंगे, ठीक है, दिस इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज फाइल। ये वही चीज़ थी जो हमने उस विंडो में देखी थी, छोटी वाली विंडो में, ठीक है, LDSTR, कॉल, एंट्री पॉइंट क्या है, एंड ऑफ मेथड कहाँ पर हो रहा है आपका, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर दिखेंगी इस टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट इज ILASM। व्हाट इज ILASM? ILDASM तो डिसअसेंबलर है, ILASM इज इंटरमीडिएट असेंबलर। लैंग्वेज असेंबलर, मीन्स आपको वापस से जो टेक्स्ट फाइल आपने सेव करी है उससे क्या बनानी है, EXE बनानी है। If you want to reconstruct an assembly from a text file that contains manifest and IL, और वो टेक्स्ट फाइल कहाँ पर है आपकी, वेर इज योर टेक्स्ट फाइल, जो आपने sample डॉट आई एल सेव करी थी और सी ड्राइव में है आपकी, तो आप क्या कमांड यूज़ करोगे, ILASM डॉट EXE, ठीक है, देन सी एंड sample डॉट आई एल, ठीक है, यही तो है sample डॉट आई एल, यस सर। ठीक है। नाउ इफ़ यू क्लिक एंटर, ठीक है, इतनी कमांड लिखनी है आपने। अब आप क्या कर रहे हो, वापस से EXE फाइल बना रहे हो। पहले तो आपने EXE से क्या करी, EXE से उसके अंदर के कंटेंट को रीड किया, तो क्या बनी उससे इंटरमीडिएट। अब आप क्या कर रहे हो, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो, इंटरमीडिएट लैंग्वेज टू EXE। सो XCM में कन्वर्ट हाँ, किए। अब देखो ये कमांड चलाया तो क्या क्या कह रहा है, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली राइटिंग PE फाइल। व्हाट इज PE फाइल हियर, PE इज ए पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ओपन दिस पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये कहाँ पर होगी आपकी, जहाँ पर आपकी sample डॉट आई एल है, ठीक है, वहाँ पर ही हमारी क्या बनी है, sample डॉट EXE, यस उसी की एग्जीक्यूटेबल बनी है, ठीक है। इफ़ यू क्लिक दिस, इट विल जनरेट द सेम आउटपुट, हेलो लर्नर्स, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपने अब कैसे बनाई है ये दिस इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ IL फाइल, ठीक है, ठीक है, एंड विद दिस कमांड ILASM डॉट EXE, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हम जाएंगे कितने टाइप की असेंबलीज होती हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेंबलीज आर देयर। assembly and its strong name is global assembly cache. How and when to install assembly in global assembly cache. So there are two types of .NET assembly. Okay, .NET assembly is classified into two types. One is weak named assembly and second one is strong named assembly. ठीक है, अब मैं assembly कह रहा हूँ, assembly क्या चीज़ है? assembly की बात कर रहे हैं ना, तो assembly में क्या चीज़ आती है? सर कंटेंट असेंबली में आपकी दो फाइल आती है ना, कौन सी आती है? EXE या DLL, ठीक है। DLL। हाँ, और असेंबली के अंदर आपका क्या होता है? मैनिफेस्ट एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, मैनिफेस्ट एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। तभी तो हमारी क्या बनी? IL फाइल बनी, डिसअसेंबलर से IL फाइल बनी, एंड असेंबलर से क्या बनी आपकी? IL फाइल से वापस एग्जीक्यूटेबल बनी, ठीक है। सो व्हाट इज वीक नेम्ड असेंबली एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबली क्या होती है? जब आप अपनी असेंबली को पब्लिक प्राइवेट की से क्या करते हो? साइन करते हो, ठीक है, डेट इज साइंड विद द पब्लिक और प्राइवेट की, ठीक है। वीक नेम्ड असेंबली क्या होती है? जब आप अपनी असेंबली दैट इज नॉट साइंड विद पब्लिक एंड प्राइवेट की इज कॉल्ड वीक नेम्ड असेंबली, ठीक है। अब असेंबली के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। असेंबली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। वन इज सिंपल टेक्सचुअल नेम, ठीक है। असेंबली का जो नाम होता है, जैसे हमने देखा था इंट्रो टू C#.exe, ठीक है, इंट्रो टू C# इज द नेम ऑफ द असेंबली, ठीक है। सेकेंड वन इज वर्जन नंबर, वर्जन नंबर देखा था हमने 1.0.0.0, ठीक है। थर्ड वन इज कल्चर इंफॉर्मेशन, कल्चर इंफॉर्मेशन इज द लैंग्वेज यू यूज्ड राइट इन क्रिएटिंग असेंबली, ठीक है। अगर आपने कोई लैंग्वेज यूज़ करी है सो वहाँ पर वो लैंग्वेज आ जाएगी, अदरवाइज इट विल बी ए लैंग्वेज न्यूट्रल, तो उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। देन नेक्स्ट इज ए पब्लिक की टोकन, अगर आप अपनी असेंबली को क्या करते हो? स्ट्रांगली नेम देते हो, देन ए पब्लिक की टोकन विल बी जनरेटेड फॉर दैट असेंबली, राइट। अभी आपकी असेंबली की इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? ये जो 4 चीज़ें हैं, सिंपल टेक्सचुअल नेम, वर्जन नंबर, कल्चर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक की टोकन, ठीक है, ये होती हैं आपकी। इफ यू गो टू विजुअल स्टूडियो, ओपन दिस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, गो टू प्रॉपर्टीज एंड ओपन दिस असेंबली इन्फो फाइल, ठीक है। सो दिस इज योर असेंबली टाइटल, ठीक है, द नेम ऑफ द असेंबली इंट्रो टू C#, वही चीज़ है, ठीक है। देन असेंबली डिस्क्रिप्शन, असेंबली कन्फिग्रेशन, असेंबली कंपनी, असेंबली प्रोडक्ट, ठीक है। असेंबली कल्चर, कल्चर इज कौन सी लैंग्वेज आपकी है इसमें, ठीक है। अगर आप इसमें कोई चीज़ डालोगे, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट असेंबली। अगर यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखा है, इट इज़ लैंग्वेज न्यूट्रल, ठीक है। अगर इसमें आपने कुछ चीज़ लिखी हुई है, जैसे इंग्लिश के लिए EN, फ्रेंच के लिए FR, यहाँ पर कल्चर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज़ लैंग्वेज न्यूट्रल। अगर कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, दैट इज़ सैटेलाइट असेंबली, ठीक है। देन दिस इज द वर्जन इंफॉर्मेशन ऑफ असेंबली, ठीक है। 4 पार्ट्स में होता है, मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, बिल्ड नंबर एंड रिवीजन, ठीक है। अगर आप ये देखोगे 1.0.0.0, इसमें 1 क्या है? 1 इज मेजर वर्जन, ठीक है। जो सेकंड वाला 0 है दैट इज माइनर वर्जन, थर्ड वाला 0 है इट इज बिल्ड नंबर, एंड फोर्थ वाला 0 जो है इट इज रिवीजन, ठीक है। सो वी यूज असेंबली वर्जन एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द असेंबली वर्जन, तो ये हमने असेंबली वर्जन एट्रीब्यूट है ना, दीज आर एट्रीब्यूट्स। असेंबली वर्जन इज ए एट्रीब्यूट, असेंबली वर्जन फाइल वर्जन इज ए एट्रीब्यूट, ठीक है। असेंबली टाइटल इज ए एट्रीब्यूट, असेंबली डिस्क्रिप्शन इज ए एट्रीब्यूट, असेंबली कॉन्फ़िगरेशन इज ए एट्रीब्यूट, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर,
ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड असेंबली इन्फो डॉट सी एस, ये यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती है, मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, बिल्ड नंबर एंड रिवीजन नंबर। ठीक है, ये क्लियर है। जैसे आपका 1.0.0.0 है, हाँ जी जी, तो उसमें जो पहला वाला 1 है वो क्या होगा आपका मेजर वर्जन, वर्जन। दूसरा वाला 0 क्या होगा आपका माइनर वर्जन, हाँ जी, थर्ड वाला आपका क्या होगा बिल्ड नंबर, फोर्थ वाला आपका रिवीजन। ठीक है, ओके, ऐसे क्यों लिखते हैं इसे, मान लिया आपने कोई क्या बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, हाँ जी, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, इनिशियली उसे आपने क्या दोगे, कोई वर्जन दोगे ना, तो आपने क्या वर्जन दे दिया 1.0.0.0। ठीक है, इनिशियली आपने क्या दिया उससे वर्जन नंबर 1.0.0। बाद में आपने उसमें कुछ क्या करना है, कुछ अपडेट करना है अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, मान लिया कोई बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है, देन यू कैन चेंज द वर्जन नंबर। अगर मेजर अपडेट है तो यू कैन चेंज द फर्स्ट नंबर दैट इज 1 को आप 2 कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपने मेजरली इसे एक बार चेंज कर लिया। ठीक है, अगर ओके आपने अगर आपका कोई माइनर चेंज है तो आप कहाँ पर चेंज करोगे, यहाँ सर, पर सेकंड। सेकंड वाले में। अगर आपका कितने बार बिल्ड हुआ है प्रोजेक्ट, बिल्ड मतलब आपने कितने बार से कंपाइल किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये होता है ना बिल्ड, बिल्ड सॉल्यूशन या बिल्ड प्रोजेक्ट, कितने बार अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बिल्ड नंबर। ठीक है, और कितने बार उसका रिवीजन हुआ है कोड का, दैट इज कॉल्ड द रिवीजन। ठीक है, उस हिसाब से आपके ये नंबर्स चेंज होते हैं। ठीक है, जब भी आपके सॉफ्टवेयर में कोई चेंज होता है तो ये नंबर भी आपके चेंज होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज असेंबली कल्चर। जैसे बताया था मैंने, असेंबली कल्चर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द कल्चर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपकी असेंबली लैंग्वेज न्यूट्रल होती है। ठीक है, आपको क्या देना पड़ता है, वहाँ पर कोई लैंग्वेज देनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया था इंग्लिश के लिए EN, फ्रेंच के लिए FR। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोई लैंग्वेज देनी पड़ती है। अगर आपकी वहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो दैट इज़ लैंग्वेज न्यूट्रल। अगर वहाँ पर कुछ चीज़ है स्ट्रिंग अंदर तो दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट असेंबली। ठीक है, तो हम ये क्यों करते हैं कि कंपाइलर उसमें क्या करे, डिस्टिंग्विश कर सके कि हमारी लैंग्वेज न्यूट्रल असेंबली कौन सी है और सैटेलाइट असेंबली कौन सी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू साइन योर असेंबली विद स्ट्रॉन्ग नेम। ठीक है, अपनी असेंबली को कैसे साइन करते हैं विद पब्लिक प्राइवेट की। ठीक है, सो उसके लिए भी हमारे क्या होता है, टूल होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग नेमिंग टूल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेमिंग टूल इज़ यूज टू जनरेट ए की पेयर। इससे क्या बनता है, आपका की पेयर बनता है। ठीक है, तो कमांड क्या होती है, sn.exe -k इज़ फॉर जनरेटिंग द की एंड द लोकेशन ऑफ दिस की फाइल। ठीक है, कहाँ पर आप उस की फाइल का लोकेशन देना चाहते हो, ये कहाँ पर होगा काम सब, दिस कमांड प्रॉम्प्ट में। कौन से कमांड प्रॉम्प्ट में, विजुअल स्टूडियो के। तो आप अगर ओपन करेंगे तो प्रॉम्प्ट में कैसे जाते हैं मैंने आपको ये तीसरे बार बता दिया। ठीक है, आप कहाँ जाओगे, विजुअल स्टूडियो 2019, गो टू दिस डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, डायरेक्टली से ओपन नहीं करना है, राइट क्लिक, मोर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। ठीक है, तो आपका क्या लोकेशन आ जाएगी, सी विंडोज सिस्टम 32। ठीक है, नाउ कमांड क्या है उसकी, sn.exe। ठीक है, कमांड इज sn.exe -k इज फॉर जनरेटिंग की एंड द लोकेशन फॉर सेविंग द की। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया सैम्पल की डॉट SNK। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नाम दे रखा, की फाइल डॉट SNK, हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर प्रेस एंटर, तो ये क्या बोल रहा है, की पेयर रिटर्न टू सी ड्राइव सैम्पल की डॉट SNK। अब आपकी क्या होगी, ये की फाइल जनरेट हो गई। अगर आप देखना चाहोगे तो सी ड्राइव में आपकी ये बनी हुई है। ठीक है, सैम्पल की डॉट SNK फाइल। अब आपने क्या करना है, अपनी असेंबली को क्या करना है, साइन करना है। ठीक है, तो टू गिव असेंबली विद ए स्ट्रॉन्ग नेम, तो क्या देंगे आप, असेंबली, गो टू असेंबली,
property is assembly key file, and give the location of the assembly. ठीक है, आपकी लोकेशन कहाँ पर है? आपकी लोकेशन है C ड्राइव में, और sample key dot snk is the name of that strong name key file. ठीक है, आप कहाँ पर दोगे इसे? इसे दोगे आप यहाँ पर ड्राइव एंड गो टू सैम्पल की. देखो यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है, यू हैव टू राइट वन मोर बैक स्पेस हियर. ठीक है, एक ये स्लैश बैक स्लैश हियर. ठीक है, तब जाके देगा. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबली शुड हैव द फॉलोइंग. एक तो टेक्सचुअल नेम ऑफ द असेंबली, टेक्सचुअल नेम हमारा है यहाँ पर ऊपर, इंट्रो टू C#. ठीक है, असेंबली वर्जन भी हमारा है. क्या है असेंबली वर्जन? असेंबली वर्जन इज 1.0.0. ठीक है, and we have a assembly should have been signed with private public key pair. हमने की फाइल बनाई थी C ड्राइव में. ठीक है, उसकी लोकेशन दे दी हमने यहाँ पर C sample key dot snk. now your assembly is signed. आपकी असेंबली क्या होगी? अब साइंड हो गई यहाँ पर. ठीक है, साइन होने के बाद you have to again build that solution. ठीक है, बिल्ड सक्सेडेड. अगर आप असेंबली की इंफॉर्मेशन देखना चाहोगे तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, देन यू हैव टू ओपन दिस एंड गो टू bin debug एंड intro to C#.exe. ठीक है, अभी क्या है, आपकी असेंबली साइंड है विद पब्लिक प्राइवेट की. देखो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आ रही है. ठीक है, वही चीज़ है, लैंग्वेज न्यूट्रल है आपकी असेंबली. ठीक है, आपने लैंग्वेज नहीं दी है वहाँ पर. इसका वर्जन भी दिखा रहा है ये. ठीक है, इसका नेम भी दिखा रहा है. ठीक है, यहाँ कोई किसी काम में पीछे नहीं सकता. ये क्लियर है? Yes, sir. देखो, if the assembly is not signed with private public key pair, then assembly is weak named. ठीक है, अगर आपने साइन नहीं किया है तो वीक नेम्ड होगी और वो यूनिक नहीं होगी आपकी असेंबली. अगर आप साइन करोगे तो डेट इज यूनिक एंड में कॉज है DLL हेल्प प्रॉब्लम. DLL हेल्प प्रॉब्लम क्या होती है अभी आगे आएगा. ठीक है, अब ये देख लो, DLL हेल्प प्रॉब्लम जनरेट करेगा अगर आपकी असेंबली यूनिक नहीं होगी तो. ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबलीज आर गारंटीड टू बी यूनिक एंड सॉल्व्स द DLL हेल्प प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबली को क्या करा है, पब्लिक प्राइवेट की पेयर से क्या करा, साइन किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल असेंबली कैशे. ग्लोबल असेंबली कैशे कहाँ पर होता है आपका? व्हाट इज ग्लोबल असेंबली कैश? ग्लोबल असेंबली कैश कंटेन्स स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबली. इसमें आपकी वीक नेम्ड असेंबली इंस्टॉल नहीं होंगी. ठीक है, assemblies in the global assembly cache can shared by all the application running on the machine. अगर आपको कोई आपने DLL या EXE बना रखी है, you want to share that assembly with different application, so you have to install that assembly in global assembly cache. ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके. Just a minute. You can take break for 2-3 minutes. फिर हम स्टार्ट करते हैं. Okay, sir.
ओके सिमरन जी। ठीक है, ग्लोबल असेंबली कैश क्या होता है? व्हाट इज ग्लोबल असेंबली कैश है? जिसमें स्ट्रॉन्ग हाँ, जिसमें आपके हाँ स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबली जाएंगी। ठीक है, मींस शेयर्ड असेंबली। ठीक है, शेयर्ड असेंबली जाएगी जहाँ पर आपने असेंबली को क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग नेम दिया है, आपने की जनरेट करी है, उसे साइन कर दिया अपने SN की फाइल से। ठीक है, SN के फाइल से। नेक्स्ट, हाउ टू इंस्टॉल दैट असेंबली इन ग्लोबल असेंबली कैशे। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करते हैं हम? ठीक है, अब असेंबली की लोकेशन कहाँ है हमारी? असेंबली की लोकेशन हमारी दो हैं। ठीक है, डॉटनेट फ्रेमवर्क जब हमारा 4.0 इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद से हमारी दो लोकेशन है असेंबली की। एक तो है हमारी सी विंडोज़ असेंबली। ठीक है, अगर आप जाओगे सी ड्राइव में, सी देन विंडोज़ देन असेंबली। ठीक है, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ असेंबली फॉर डॉटनेट 2.0 to 3.5। ठीक है, फॉर डॉटनेट 2.0 to 3.5 इसकी लोकेशन कहाँ पर है आपकी? सी विंडोज़ एंड असेंबली। ठीक है, and for .NET 4.0 and later the assembly location is C drive। देखो लोकेशन कहाँ पर है? C drive विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट .NET एंड असेंबली। ठीक है, डायरेक्ट असेंबली नहीं है, बीच में माइक्रोसॉफ्ट .NET भी है इसमें। ठीक है, if you open that folder C drive विंडोज़ then Microsoft .NET and then assembly। ठीक है, और इसके अंदर है आपकी असेंबलीज। ठीक है, अगर आप किसी एक असेंबली में जाएंगे, सपोज आई वांट टू गो टू सिस्टम असेंबली। ठीक है, सिस्टम देखो अब इसका वर्जन भी है, वर्जन 4.0.0.0, और इसकी क्या है, पब्लिक की टोकन भी है जो आपका आ रहा है B77A5C561934E। सिर्फ पब्लिक की टोकन। इसके अंदर जाएंगे, ये क्या है आपकी DLL फाइल है। जो मैंने कहा था ना EXE होती है या DLL होती है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन देखोगे आप, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, ठीक है, डिटेल्स में जाओगे, सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ द असेंबली। ठीक है, देखो इसमें लैंग्वेज न्यूट्रल नहीं है, लैंग्वेज इसमें है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज़ नॉट लैंग्वेज न्यूट्रल असेंबली। ठीक है, और ये डिजिटली साइंड भी है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए शेयर्ड असेंबली। ठीक है, नाउ हाउ टू इंस्टॉल असेंबली। या तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो असेंबली को, या आप getutil.exe का यूज़ करो। ठीक है, सपोज़ इसमें हम एक और प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, हमने कहा था ना वी कैन क्रिएट n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, n टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इन सिंगल सॉल्यूशन। इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, तो एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हम क्लास लाइब्रेरी बनाएंगे। ठीक है, क्लास लाइब्रेरी एंड नेक्स्ट इसका नाम दे दो क्लास लाइब्रेरी, क्रिएट। ठीक है, अब इसमें आपका मेन मेथड नहीं है। ठीक है, इसमें तो आपका मेन मेथड है, इसमें आपका मेन मेथड नहीं है बिकॉज इट इज़ ए क्लास लाइब्रेरी। अब यहाँ पर क्या जनरेट होगा? सिमरन जी यस सर। देखो, क्लास लाइब्रेरी में आपका मेन मेथड नहीं है, वहाँ पर क्या जनरेट होगा आपका? वहाँ पर सर आपकी DLL फाइल होगी। ठीक है, अभी हमने EXE फाइल देखी थी जिसमें मेन मेथड था, अब दैट इज़ हैविंग विदाउट मेन मेथड, तो आपका उसका DLL जनरेट होगा। ठीक है, DLL बनेगा इसका। सपोज आई वांट टू क्रिएट ए मेथड। ठीक है, मैं इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाता हूँ। अब और मैसेज, मेथड कैसे बनता है, मेथड होता क्या है हम आगे देखेंगे। अभी देखो कैसे बनता है। इट इज़ हैविंग एक्सेस स्पेसिफाई,
void means no return type and the name of the method. ठीक है, void का मतलब क्या होता है, no return type. public means आपने प्रीवियस सेमेस्टर में C++ क्या पढ़ा हुआ है? C++ C++ पढ़ी है ना, तो आपको ये पता होगा ना मेथड कैसे बनती है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं एंड yes sir रिटर्न टाइप क्या होता है ना, ये तो पता ही होगा आपका. ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर इज दिस, void is no return type and show message the name of the method. function. सपोज आई वांट टू प्रिंट समथिंग, देन मैं इसमें प्रिंट करना चाह रहा हूँ कुछ चीज़, तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, या इसको दे देते हैं हम स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग. नाउ इट विल रिटर्न ए स्ट्रिंग. अब इसका टाइप void नहीं है, इट विल रिटर्न ए स्ट्रिंग. तो यहाँ पर हम इसे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न. मैं इसमें रिटर्न कराना चाह रहा हूँ GEU ग्राफिकल यूनिवर्सिटी. तो इट विल रिटर्न GEU. ठीक है, एज ए स्ट्रिंग. now I want to use that method in this application. ठीक है, आपके पास दो अलग अलग एप्लीकेशन है ना. सपोज आई वांट टू यूज दिस मेथड इन दिस एप्लीकेशन. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको फर्स्ट, और वो भी क्या करना पड़ेगा, देखो सपोज आई वांट टू यूज दिस एप्लीकेशन. सबसे पहले इसको बिल्ड करना पड़ेगा, यू हैव टू बिल्ड द सॉल्यूशन. अब इसमें क्या होगा, आपके दोनों प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएंगे. अब इसमें क्या बना, देखो क्लास लाइब्रेरी डॉट DLL फाइल, वहाँ पर क्या बनी थी, इंट्रो टू C#.exe. यहाँ पर आपकी DLL फाइल बनी हुई है. If you open the location of that file, open folder, bin debug and class library.dll. ठीक है, वही लोकेशन है आपकी, bin debug. यहाँ पर exe नहीं है, यहाँ पर आपकी क्या है, DLL फाइल है. ठीक है, अब इसका रेफरेंस कैसे देंगे आप, आपको ये DLL फाइल यहाँ यूज़ करनी है, इसके अंदर के क्लास और इसके अंदर का मेथड. गिव द रेफरेंस, गो टू ऐड रेफरेंस. ठीक है, यहाँ से ब्राउज करेंगे हम इसे. ठीक है, क्या था हमारा, इंट्रो टू C# था हमारा. ठीक है, क्लास लाइब्रेरी के अंदर, बिन के अंदर डीबग, क्लास लाइब्रेरी डॉट DLL, ऐड. ओके, अब यहाँ पर क्या हो गई, क्लास लाइब्रेरी नाम की DLL रेफरेंस हो गई. ठीक है, मीन्स आपने क्या करें, दो प्रोजेक्ट बनाए ना. इंट्रो टू C# इज अ कंसोल एप्लीकेशन एंड दिस इज क्लास लाइब्रेरी. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ program.cs में. ठीक है, पहले क्या करेंगे, ये यूजिंग सिस्टम कहाँ से आया आपका, यूजिंग सिस्टम कहाँ से आया है, सिमरन जी, यूजिंग सिस्टम कहाँ से आया आपका? सर EX जो फाइल थी उसमें. नो नो नो, यूजिंग सिस्टम आपका आया यहाँ से. देखो ये सिस्टम रेफरेंस आपने दिया है यहाँ पर. ठीक है, तो यूजिंग सिस्टम आपका यहाँ से आया है. ठीक है, Okay, ऐसे ही आप क्लास लाइब्रेरी का यूज़ करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे यूजिंग क्लास लाइब्रेरी. ठीक है, क्लास लाइब्रेरी आया. yes sir. हाँ, नाउ इफ यू वांट टू यूज दैट क्लास एंड मेथड, जस्ट अ मिनट. So suppose I want to use that class and method in this project. ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने ये तो इंपोर्ट कर दिया. अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्लास वन क्या है आपका, ये क्लास है, ये तो है. देन मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास वन C इक्वल्स टू न्यू क्लास वन. ठीक है, एंड C डॉट क्या आ जाएगा आपका, या तो आप ऐसे करो इसे. ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लास वन डॉट शो मैसेज. जो सी वही तो मेथड है आपका, क्लास वन डॉट शो मैसेज. सो
return that GEU, control F5. Some exception is coming. Why this exception is coming? 1 minute. Public static string, and if you there's some exception in this. I think यहाँ पर हमने कुछ references में कुछ दिक्कत करी है. That is sample key.snk file. Okay.
Just a minute, Simranjeet. Yes, sir. सिमरनजीत, स्क्रीन विजिबल है क्या? Sir, no. एक मिनट, जस्ट अ मिनट.
Okay, is it visible now, सिमरनजीत? Yes, sir, visible. कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कोड में, लेकिन सेम वही चीज़ करिए। देखो हमने क्या करा था इसमें, वी हैव क्रिएटेड 2 प्रोजेक्ट्स, दैट इज़ क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। एक क्लास लाइब्रेरी बनाई थी, एक हमने क्या बनाई थी, कंसोल एप्लीकेशन। एंड हमने क्लास लाइब्रेरी का रेफरेंस दिया कहाँ पर, कंसोल एप्लीकेशन में, दैट इज़ यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने यूजिंग सिस्टम यूज़ किया है वैसे आपने यूजिंग क्लास लाइब्रेरी यूज़ करी है, ठीक है। एंड आपने क्या करा है, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक मैसेज बनाया, शो मैसेज, ठीक है। इसमें आप क्या प्रिंट करा रहे हो, GEO प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। तो मतलब रेफरेंस देने का मतलब क्या है, यू आर यूजिंग दिस क्लास एंड दिस मेथड इन दिस एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो यू कैन यूज़ इट बाय दिस क्लास 1, द नेम ऑफ द क्लास जो आपका क्लास लाइब्रेरी में है, और इन द नेम ऑफ द मेथड जो आपका क्लास लाइब्रेरी में, ठीक है। इफ़ यू रन दिस प्रोजेक्ट, सो ये आउटपुट आएगा आपका, ठीक है, GEO जो आपने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने असेंबली रेफरेंस करी है, दैट इज़ प्राइवेट असेंबली, ठीक है। ये आपकी क्या है अभी, ये प्राइवेट असेंबली है या वीक नेम्ड असेंबली है, ठीक है। हमने इसे साइन नहीं किया है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू साइन दैट असेंबली, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, गो टू प्रॉपर्टीज़, असेंबली इन्फो, ठीक है, एंड साइन दैट असेंबली विथ, कैसे साइन करेंगे, असेंबली, देन असेंबली की फाइल एंड गिव द लोकेशन ऑफ द असेंबली। कहाँ पर बनाई थी हमने की फाइल, सी ड्राइव में, C drive में. सी ड्राइव, ठीक है, विदिन डबल कोट्स सी ड्राइव एंड गिव द नेम ऑफ द असेंबली, ठीक है। क्या था हमारा, सी ड्राइव कोलन, ठीक है, डबल स्लैश लगेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्या है आपका ये एस्केप सीक्वेंस है आपका, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डबल स्लैश लगेगा। सिंगल स्लैश में आपका क्या आएगा, एरर आएगी, ठीक है। यहाँ पर डबल स्लैश लगाना पड़ेगा आपको। एंड गिव द नेम ऑफ द असेंबली, क्या नेम था हमारा असेंबली का, सैम्पल की डॉट SNK, ठीक है, सैम्पल की डॉट SNK, ठीक है। नाउ अगेन बिल्ड द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आप अब इसको बिल्ड करेंगे इस प्रोजेक्ट को, नाउ दिस इज साइंड विद ए पब्लिक प्राइवेट की, ठीक है। अभी आपकी असेंबली साइंड है, ठीक है। देन यू हैव टू अगेन गिव द रेफरेंस ऑफ दैट असेंबली, आपको फिर से रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको किसे कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ग्लोबल असेंबली कैशे में। सो हम क्या यूज़ करेंगे, GAC-util.exe टूल, ठीक है। उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू सेम विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। हम गए विजुअल स्टूडियो 2019, गो टू डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक, मोर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ठीक है। ये आ गया सी विंडोज सिस्टम 32, ठीक है, यही तो बात आता है। देन यूज दिस GAC-util.exe, क्या लिखा हुआ है देखो, GAC-util इंस्टॉल करने के लिए GAC-util.exe, ठीक है, GAC-util.exe, -i इज फॉर इंस्टॉल, ठीक है, -i इज फॉर इंस्टॉल, मतलब -i इज फॉर इंस्टॉल, -u मीन्स अनइंस्टॉल द असेंबली, ठीक है। कहाँ पर इंस्टॉल करना है, कहाँ से करना है, ठीक है, कहाँ से करना है, हमने करना है इस प्रोजेक्ट में जाके इस क्लास लाइब्रेरी की असेंबली को, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, देन डिबग, that path and paste it, and then name of the DLL, that is class library.dll, यहाँ पर पूरा लिखोगे आप, class library.dll, ठीक है, प्रेस एंटर, असेंबली सक्सेसफुली एडेड टू कैशे, ठीक है। अब ये कैशे कहाँ है आपका, कहाँ पर होता है ग्लोबल असेंबली कैश, वेयर इज द लोकेशन ऑफ ग्लोबल असेंबली कैश, सिमरनजीत,
दो लोकेशन बताई थी मैंने ना, सी ड्राइव में, विंडोज़ के अंदर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के अंदर असेंबली, एंड देन GAC_MSIL, ये बनी है आपकी, देखो क्लास लाइब्रेरी, ये अभी अभी इंस्टॉल हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसके कितने वर्जन है, देखो इसके 3 वर्जन है, 2 मैंने पहले से बनाए थे, एक अभी जनरेट हुआ है, ठीक है, ये आज की डेट में, ये आज की डेट वाला है। इसको हम ये वाले को, इसको चलो अभी नहीं हटाते हैं। इसमें क्या है, इसका वर्जन है एंड दिस पब्लिक की टोकन, ठीक है, 67F290, ये आपका पब्लिक की टोकन है। इसके अंदर हमारी क्लास लाइब्रेरी डॉट DLL है, ठीक है। राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज, सी द डिटेल्स, इट विल गिव द डिटेल्स ऑफ दैट असेंबली, ठीक है। तो अब आपकी कहाँ हो गई असेंबली, ग्लोबल असेंबली कैशे में, ठीक है। अगर आपको अब इसे अनइंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करने के लिए GAC util-u इज फॉर अनइंस्टॉलेशन, ठीक है। गिव द पाथ ऑफ दैट असेंबली, इसमें यहाँ पर पाथ नहीं आएगा, इसमें सीधे असेंबली का नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पाथ नहीं दोगे, यहाँ पर क्या दोगे, क्लास लाइब्रेरी विदाउट .dll, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जितनी भी असेंबलीज़ हैं यहाँ पर, ये सब डिलीट हो जाएंगी। क्लास लाइब्रेरी नाम पे जितने भी असेंबलीज़ है वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, क्लास लाइब्रेरी। फिर प्रेस एंटर, ठीक है, दीज असेंबलीज आर डिलीटेड। अभी इस फोल्डर के अंदर देखो है नहीं वो फोल्डर, ठीक है, तो उसके अंदर की तीनों असेंबली भी डिलीट हो गई आपकी, ठीक है। नंबर ऑफ असेंबलीज अनइंस्टॉल्ड दैट इज 3 थी ना पहले से, एक हमने अभी बनाई, कुछ मैंने पहले बना रखी थी तो वो दिखा रहा था, ठीक है। तो कमांड इज get util -u and get util -i, -i is for installation, -u is for uninstallation, ठीक है। देखो अब आपको स्पेसिफिक असेंबली को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। हमारे पास कितनी असेंबलीज थी, उसमें 3 थी ना, 3 फोल्डर बने थे। अगर स्पेसिफिक को करना है तो देन यू हैव टू गिव द कंप्लीट थिंग, कौन सा वर्जन है, कौन सा पब्लिक की टोकन है, ठीक है, ये सब चीज़ देना पड़ेगा। देन यू हैव टू इंस्टॉल दैट स्पेसिफिक असेंबली। 3 थी तो 3 का वर्जन नंबर हो सकता है, वर्जन नंबर अलग अलग हो या पब्लिक की टोकन अलग अलग हो, ठीक है। तो आपको ये पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा पब्लिक की टोकन है और कौन सा वर्जन नंबर है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया था, व्हाट वी हैव डन टुडे। सर GAC कैशे, सबसे पहले तो हमने देखा था कितने टाइप की असेंबलीज होती हैं, EXE और DLL होती हैं, ठीक है। देन इंटरमीडिएट, हाँ, असेंबली के अंदर हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज या मैनिफेस्ट, ठीक है। अगर हमने अपना देखना है असेंबली के अंदर क्या कंटेंट है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ILDASM, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लैंग्वेज डिसअसेंबलर। और अगर हमने क्या करना है, वापस से उसे रिकंस्ट्रक्ट करना है तो ILASM, दैट इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज असेंबलर, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई थी। देन हमने क्या देखा था कि असेंबली के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो उसका नाम होता है, उसका वर्जन होता है, ठीक है, और उसका क्या होता है, कल्चर होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। फिर हमने देखा था, और पब्लिक की टोकन होता है, ठीक है। कितने टाइप की होती हैं, वीक नेम्ड असेंबली एंड स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबली होती हैं। स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबली इज साइंड विद ए SNK फाइल, फिर हमने SNK फाइल बनाई थी sn.exe, ठीक है, -k, and we are giving the path of that key to be saved in a particular location, जो हमने C ड्राइव में करी थी सेव, ठीक है। देन हमने क्या किया था, हमने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे, एक क्लास लाइब्रेरी और एक कंसोल एप्लीकेशन। क्लास लाइब्रेरी में आपकी DLL फाइल बनी, कंसोल एप्लीकेशन में आपकी क्या बनी, EXE फाइल बनी, ठीक है। देन वी हैव यूज्ड द क्लास एंड मेथड ऑफ द क्लास लाइब्रेरी इन कंसोल एप्लीकेशन, हमने रेफरेंस दिया था
ठीक है। फिर यूजिंग हमने क्लास लाइब्रेरी करके उसका यूज़ किया, ठीक है, इसके मेथड का। देन हमने इंस्टॉल करा किसको, क्लास लाइब्रेरी डॉट DLL को ग्लोबल असेंबली कैशे में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गैक यूटिल, GAC यूटिल से किया था हमने। यहाँ पर हमारा फिर एक क्लास लाइब्रेरी नाम का फोल्डर बना था, उसके अंदर 3 फाइल्स थी, 2 उसमें पहले से थी, ठीक है, पहले बनाई होंगी मैंने, और एक अभी बनाई थी करंट, ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली, ठीक है। तो आज यहीं पर ही एंड करते हैं, ठीक है, और इसमें ऑल लर्नर्स ने ज्वाइन किया नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे देखेंगे, ओके सर। ठीक है। तो हम एंडिंग द सेशन, प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है, असेंबलर, डिसअसेंबलर, और हाउ टू क्रिएट DLL फाइल, exe फाइल, और हाउ टू इंस्टॉल दैट असेंबली इन ग्लोबल असेंबली कैशे, ठीक है, गैक यूटिल से। पहले Fine. विजुअल स्टूडियो, हाँ पहले ये इंस्टॉल कर लेना आप सॉफ्टवेयर, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया आपने? इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फर्स्ट, हाँ, ये इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ही काम होंगे आपके लिए, ठीक है सर। ओके, आई ठीक एम है। एंडिंग द सेशन, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके।